Hi class, this is Mohsin sir. I hope you are all fine and safe at your home. So continuation of the previous lesson number 1, yes, of history, what, where, how and when. So in the previous video which we have studied that finding out about the past. If you have not seen the video, watch that video and come back to this video, okay? Then you are going to know what we are going to discuss about in this particular video or particular part. Now, interesting fact is that as we have left with that particular that कि हम किस में लिखा करते थे, ओके? तो एक चीज तो आप बता दें कि मैन्युस्क्रिप्ट, एंड आई हैव मेंशन अबाउट मैन्युस्क्रिप्ट, टू मैन्युस्क्रिप्ट जो आजकल आप टीवी में बहुत देख रहे हैं, रामायण और महाभारत. रामायण एक्चुअली वाज रिटन बाय ऋषि वाल्मीकि एंड महाभारत वाज एक्चुअली रिटन बाय ऋषि व्यास. एंड इन फैक्ट you also should know about that Ramayana was actually not Ramayana was actually written in Sanskrit language, but later on, as the demand or as the use of Sanskrit was been reduced, all the other people, all the Rishi Munis, they have started, or the people have started translating the Ramayana into their own mother tongue. In Kannada is there, or in Marathi is there. So there are plenty of the writers who have written down the Ramayana in their own particular language, and there are plenty of versions of Ramayana also. Okay. Now coming back to our this thing. Now what were the manuscript? As I said, the books consider religious belief and practice like Ramayana and Mahabharata. Ramayana and Mahabharata has taught us, has been given us that what Lord Ram has done, what Lord Vishnu or Lord Krishna has done. Those kind of a thing we have to know about this kind of a particular books in Ramayana and Mahabharata. Remember I am saying Ramayana and Mahabharata. Why? Because the translation of from Hindi to or Sanskrit to English, these people or the British language, this English are using A in the end. So it's fine if you speak the रामायण और महाभारत. आप रामायण भी बोल सकते हो, रामायणा भी बोल सकते हो, महाभारत भी बोल सकते हो, महाभारत भी बोल सकते हो. That doesn't matter at all. The feeling has to be a lot for you. Now, in that manuscript there are plenty of other things apart from religious belief and practices. Now, apart from Ramayana and Mahabharata, there were Rigveda also, there were Yajurveda also, there were Samveda also, there were other Veda also. Rigveda is considered to be the oldest apart from all these Vedas. It's approximately, you have seen, the 3,500 years back. And interesting part, I have mentioned earlier that Rigveda, who had written, many of the people they don't know that. Who is the writer of the Rigveda still have to be found out. And in Rigveda there are so many stories and so many ways of rituals we came to know about that also. Remember about Ashwamedh Yagna also. So this kind of stuff have been continuing from that particular days. Even the kings, even the Maharaja of today's date, आज की डेट में भी बहुत सारे महाराजा राजा वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं. And it's been going on for a long time. Then medicines. The medicine, not the medicine. Medicines have been written down. Now you have seen Ramayana, you have seen that Lord Hanuman जी उन्होंने पर्वत उठाया और संजीवनी पर्वत उठा के लेके आया और संजीवनी लॉर्ड राम के भाई को वो दवाई यूज में आई थी. तो वो भी चीज मेंशन है कि ये चीज संजीवनी, बट हमें नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर है, कौन सी चीज को ऐसा संजीवनी यूज कर सकते हैं. बट वी हैव अवर ओन आयुर्वेद, और आयुर्वेद हमें ऐसे ही मैन्युस्क्रिप्ट से मिली हुई है. Those manuscripts have been telling us that in this medicine can be used for our, and what are those medicines? From leaves, from roots, from branches, from trees, right? Many of the people are saying कि नीम का पत्ता खाना चाहिए, तुलसी का पत्ता खाना चाहिए, नीम से हमें दातुन करना चाहिए as a toothpaste. इससे आपके दांत चमकेंगे. एंड दैट इज द रीजन ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स. मैंने द ग्रैंड पेरेंट्स के दांत बहुत अच्छे और स्ट्रांग होते हैं. वो जेठालाल के बापूजी होते हैं, कैसे वो अखरोट तोड़ लेते हैं, देखा है ना? वेरी गुड. सो वी गॉट मेडिसिन्स फ्रॉम दैट आल्सो. Rituals, we came to know that what religion at that particular time I have been doing. I have just two kings we are going to study in your upper class. That's right now we don't have to worry about that. Right now we have to study about the
Iran. So there were many kings, they were following different religions, some were following the Buddhism, some were following the Hinduism, some were following the Jainism. There are plenty of religion and plenty of rituals that have been going on at that particular time. बहुत सारे रिलीजन फॉलो होते थे, बहुत सारे रिलीजन, और जिसे जो रिलीजन फॉलो करना है जैसे आज की डेट में वो कर सकते थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस किंग्स रिकॉर्ड्स भी हमें मिलते हैं. व्हाट इज किंग्स रिकॉर्ड? किंग्स रिकॉर्ड मतलब मैं एक राजा हूँ, काश आई होप मैं राजा होता तो कहता चलो हम घूमने जाते हैं, पर नहीं जा सकते, कोरोना वायरस घूम रहा है आजू-बाजू में. ओके फाइन. सो अगर मैं राजा होता ठीक है, प्रे फॉर मी हो जाऊँ. नहीं ऐसा कुछ नहीं. ओके, अगर मैं राजा हूँ और मैंने एक पर्सन को कहा कि ठीक है, आई एम हैप्पी विथ योर वॉइस, आई एम हैप्पी विथ योर हैंड राइटिंग और आई एम हैप्पी विथ योर राइटिंग. ओके, तो आपके लिए मैं ये सिटी है वो आपको मैं गिफ्ट देता हूँ. तो ये जो विलेज है वो आपका. तो वो पर्सन चला गया घूमते लाइक सपोज राहुल करके है. राहुल इज अ वेरी गुड राइटर, ओके, एंड ही इज अ वेरी गुड डांसर. तो उसको मैंने एक पर्टिकुलर सिटी है, विलेज है जिसका नाम है कुछ भी बोलते हैं, चलो हमारे नाम जहाँ पे हम रहते हैं, ओके, अहमदाबाद बोलते हैं. भी अहमदाबाद भी बहुत खतरनाक जगह है, उसका भी नाम नहीं ले सकते. ओके, एक पर्टिकुलर प्लेस है जो मैंने उसको गिफ्ट में दे दी कि भाई आपको गिफ्ट. अभी वो पर्सन वहाँ का किंग बन गया, यहाँ का रूलर बन गया. उसकी सारी जो संपत्ति है, जो सारी चीज़ें हैं वो उसके अंदर आ गई. अभी वो मूव ऑन हुआ, आगे गया और वहाँ के लोगों ने बोला भाई तुम कैसे यहाँ के रूलर हो गए, तो क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हाउ डू वी ट्रस्ट यू? कि भाई तो राजा ने तुम्हें ही कहा है. तो किंग यूज्ड टू राइट डाउन ताम्रपत्र, और मेटल राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है. ताम्र एक वन काइंड ऑफ मेटल है जिसे तांबा भी कहा जाता है. तो ताम्रपत्र उसके ऊपर लिखा, उसके ऊपर राइटिंग किया ये राहुल करके लड़का है, वो बहुत ही अच्छा डांसर है और मैंने उसको ये जगह का पूरा विलेज उसको गिफ्ट में दे दिया. तो दिखाया गया देखो ये राजा का दिया हुआ ताम्रपत्र है और ये विलेजर मेरा. ओके यू आर राइट, आप यहाँ के रूलर हो. ऑर्डर देने हो, सपोज ऑर्डर देने के भी आज जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अभी ये अब से देयर विल बी फॉर 3 months देयर विल बी लॉकडाउन. फिर आफ्टर 3 months we have been easy to go wherever we want to go, and there is many kind of things that happen and been written down and then published or pressed. न्यूज़पेपर और टीवी में सारी चीजें दिखाई जाती है. ओके, तो वो चीजें भी उस टाइम न्यूज़पेपर और टेलीविजन नहीं था, तो वो राइटिंग में देते थे और सब उसको पढ़ के फिर मूव ऑन करा करते थे. तो राजा की भी ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती थी, बट मिलती थी पर उसको ढूंढने कौन जाता था? आप नहीं, मैं बिल्कुल नहीं. अगर मैं ढूंढने जाऊंगा आपको पढ़ाएगा कौन? राइट. सो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वो सारी चीजें ढूंढते थे और वो ढूंढने बाय द वे वो ढूंढना आसान बात नहीं है. टू फाइंड आउट टू टेक दिस मच ऑफ होल, इतना खड्डा करने के लिए भी उन्हें 1 से 2 घंटे लग सकते हैं. बहुत सारा टाइम लगता है, आसान बात बिल्कुल नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. पर आर्कियोलॉजिस्ट हैज बीन यूजिंग वेरी केयरफुली. क्यों केयरफुली करना पड़ता है? क्योंकि जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ओल्ड होते हैं. 3000, 5000 मिलियंस ईयर्स बैक. रिमेंबर डायनासोर्स के फॉसिल्स में आपको बताए थे वो बहुत पुराने होते हैं, तो उसे ढूंढ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है और ढूंढने के बाद उसे ढूंढ के बाहर निकालना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. अगर सपोज मैंने जोर से स्पैड या कुल्हाड़ी जोर से मार दी तो वो चीज़ टूट जाएगी. तो हमें ऐसी बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे एक पॉट, एक मटका. वो मटका मिला तो उसमें हमें क्या हुआ, कभी कभार उस मटके के अंदर हमें कॉइन्स, सिक्के मिले थे, इतने सारे कॉइन, वो भी गोल्ड कॉइन, पर वो हमने म्यूजियम के अंदर बेच दिया था. आज के डेट में भी लाइक वो क्यों मिलते थे? सपोज ऐसा क्यों होता था कि गोल्ड कॉइन्स भरा हुआ पॉट हमें मिट्टी के अंदर मिला? अब दिस इज माय थियरी दैट ऐसा हो सकता है कि सपोज एक पर्सन एक विलेज से दूसरे विलेज चला गया, ठीक है, फॉर द वर्क ऑफ कुछ काम के लिए, कुछ जरूरत चीज़ें के लिए, तो उसने अपने घर के अंदर जो की वैल्यूबल चीज़ थी वो एक खड्डा करा और उसके अंदर रख दिया. पहले बैंक नहीं हुआ करती थी ना,
तो वो उसने वहाँ पे सेटल डाउन करके फिर वो दूसरे विलेज चले गया अपनी फैमिली के साथ। अब वो दूसरे विलेज गया तो वहाँ पे उसका जो वर्क बिजनेस एकदम एक्सपैंड हो गया, बड़ा हो गया, बहुत सारा है ना, उससे फ्लरिश हो गया। पहले यहाँ पे एक विलेज में 100 रुपये कमाता था, 100 रुपये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वहाँ पे वो 1000 रुपये कमाता था, और 1-2 साल वहाँ पे वर्क करा। अब 2-3 साल, 1 साल से ज़्यादा काम करा तो उसको भूल गया कि मैंने यहाँ पे क्या रखा था, और वो अपनी फैमिली के वहाँ पे शिफ्ट हो गया। और आफ्टर फ्यू years and many years, we came to know when we were digging the road, or we were digging the road for the pipelines and so many things, तो हमें वो पॉट मिला, और वो चीज़ से हमें पता चली कि भाई यहाँ पे पॉट भी अवेलेबल थे। Okay, right? Because now I am ending this video, and we have to start our new video regarding the archaeologists in the next video. So up till now, stay home, stay safe, bye everyone.